सो हेलो वेलकम गाइस। एक अनदर वीडियो में हम आपके साथ जुड़े हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एआई की हेल्प से लाइक चैट जीपीटी डीप सीक और अनदर कोई भी एआई टूल के साथ आप अपनी खुद की फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक अपने फ्री एडब्ल्यूएस अकाउंट पर उसको होस्ट कर सकते हैं विद योर डोमेन और विद द आईपी. Okay, so there are some simple steps. First of all, I have created, this is my AWS console, and here I have created an EC2 instance and I have launched it. Okay, so I created the instances with the name learnbuild.in. This is also my domain name, and after the few days, it will be live on internet and we can check all the details about it. Okay, so from here I have launched an EC2 instance. Let's connect with it. So in the next step I have connected with my EC2 instance. So this is my Linux instance and I have to do some basic dependencies to install it. So first of all I have to install the basic dependencies in it. So basically we have to privilege the sudo user. Okay, so you use sudo hyphen I to get login into as a root administrator, where we can perform any task without any uh, security or anything, any permissions we require. Okay, if we are login with the root user, we can do any task with all the dependencies. So from here, first of all, I have to update all the packages. Apt update. Okay, so it will update all the pre-installed packages in the server, and after that the installation has been completed. We can install all the dependencies which can be useful for to host our website on EC2 instance. Like we have a simple PHP code, so to install run the PHP code, we have some dependencies like we need a web server like Apache. So we will install the Apache server first. Then we will create the some dependencies which I have asked the on Chat GPT. Okay, so from here we can start here. First of all, apt installed Apache 2, which is a web server. Okay, so it will ask, do you want to continue? If we run this command without hyphen y, it will require the authorization, like you want to proceed with it or you want to, or you don't. Okay, so we are going to proceed with it, so press y, it will install it. And okay, so we will use Hindi as well, middle of the task, like everyone can understood what we are doing. Okay, so यहाँ से हमारा EC2 के जो डिपेंडेंसीज थी वेब सर्वर की, वो हमारी इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं. तो एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, उसको रीस्टार्ट कर लेते हैं. सिस्टम CTL स्टार्ट अपाचे 2. ओके, स्टार्ट. ओके, एक बार इसको इनेबल कर लेते हैं, जिससे कि इसमें क्या होगा, ये सिस्टम सर्विस में बन जाएगा. लाइक जब भी मेरा EC2 रिबूट होता है या स्टार्ट स्टॉप होता है, तो ये अपने आप ही वेब सर्वर को रीलोड कर देगा. ओके, स्टेटस आप चेक कर सकते हैं इसका कैसे, कि हमारा वेब सर्वर का स्टेटस क्या है. ओके, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड. ओके, स्टेटस. So from here, so my web server is completely installed and it is running fine. Okay, so after that we have to installing some PHP's dependencies, like we have some already told, asked to ChatGPT what will with our dependencies for it. So from here we can install it. There are some, let me check what are the dependencies here. सो ओके, सो वी हैव डन फ्रॉम, यहाँ तक हम कर चुके हैं. हम क्या करते हैं, एक PHP का इंस्टॉल कर लेते हैं. ठीक है, जिसमें कि ये हमको सारे PHP के जो भी हमारे पास पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करके दे देगा.
ओके, तो ये अभी हमारे PHP के जैसे ही इंस्टॉल्ड हो जाते हैं तो हम अपना नेक्स्ट जो फर्दर हमारा जो कोड है वो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ओके, so from there we have to create multiple files in our var। ओके, सो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा PHP का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड हुआ है। तो PHP का हमारा कौन सा वर्जन हुआ है, PHP 8.3.6। आई थिंक इट इज़ द लेटेस्ट वन ना। ठीक है, ये PHP का लेटेस्ट वर्जन है। और ये अभी हमको क्या करना होगा, cd/, अब हमको क्या करना है, अपना जो कोड है हमारे पास PHP का उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक HTML का वो पड़ा है हमारे पास। एंड देन ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को सारी की सारी जो भी हमारी फाइल्स हैं वो क्या करनी पड़ेंगी, इस वॉर डब डब के अंदर डालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हमको फाइल्स क्रिएट करनी है। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी यहाँ से पूछा हुआ था कि भाई हमारी कौन कौन सी जो फाइल्स होंगी वो वहाँ पर बनेंगी। ठीक है, तो पहली जो फाइल होगी हमारी, आप देख सकते हैं कि ये हमारा लर्न बुल्ड एक फोल्डर होगा जिसके अंदर क्या होगा, सारे हमारे वो बनेंगे। तो सब पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। ठीक है, एक डायरेक्टरी बनाई हमने, तो mkdir, और ये हमारा डायरेक्टरी का नेम। ओके, ये हमारी एक वो बना ली हमने डायरेक्टरी। अब इसके अंदर जितना भी होगा सब कुछ हम बना लेंगे। ठीक है, तो cd लर्न, इसके अंदर हम चले जाएंगे। अब लर्न बिल्ड के अंदर हमें जितनी भी ये फाइल्स बनी है, ठीक है, लाइक पहले हमारी फाइल जो होगी क्या होगी, index.php की। ठीक है, index.php के नाम से हम क्या बना लेंगे, एक फाइल बना लेंगे। फाइल कैसे बनती है, आप किसी से टूल से बना लो, विम, एंड यहाँ से पेस्ट कर दो, आपका ये हो जाएगा विम टूल। यहाँ से आई प्रेस करेंगे, आई प्रेस इट मीन्स एडिटर, एंड देन वी हैव टू कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इन इट। ओके, एंड क्या करेंगे, हम इसको सेव कर देंगे। तो सेव करने की कमांड होती है ये। ठीक है, ओके, अभी हमारा index.php बन गया। सेकंड हमारा कौन सा है, सेकंड है हमारा header.php। ठीक है, header.php, तो हम एक और फाइल फोल्डर बना लेते हैं, vim, सेम कमांड यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और नाम डिफरेंट डिफरेंट देंगे ना। ठीक है, तो इसमें भी सेम हम क्या करेंगे, अपनी फाइल्स को ऐड कर लेंगे, सब फाइल्स को। अब इसको मैंने अपनी सारी डिपेंडेंसीज बता रखी है ना चैट जीपीटी को, कि भाई मेरे वेबसाइट का नाम क्या होगा, ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या होंगे, और एक्स्ट्रा जो भी मेरे को चाहिए इसमें। अगर कुछ चीज़ें होती हैं कि मुझे चेंज करनी है तो वो हम बाद में चेंज कर सकते हैं। अभी फूटर डॉट पी एच पी, ये सारे क्या होते हैं, PHP के कुछ पार्ट्स होते हैं कि भाई लाइक सिंटैक्स कैसा रहना चाहिए मेरे वेबसाइट का, और मॉडल कैसे होने चाहिए, ठीक है, कलर्स कैसे होने चाहिए, जो फ़ॉन्ट है वो कैसा होना चाहिए। ओके, लाइक कहाँ पे मेरी डिटेल्स डलनी चाहिए, कहाँ नहीं डलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारी रहती हैं इसके अंदर। ऐसे ही मैं अपने सारे बना लूँगा जो भी मेरे पास है। अब ये स्टाइलिंग के लिए है ना। हम्म, अब जैसे कि ये एक बड़ा वो हो गया। अब इसको हम कैसे रखेंगे, है ना, एसेट्स के अंदर सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, सी एस एस स्टाइलिंग कैसे करेंगे, है ना। अब सी एस एस स्टाइलिंग के लिए कैसा क्या है इसके अंदर, अब देखिए, अब यहाँ क्या करा, रन बिल्ड के अंदर एक एसेट्स के नाम से एक और डायरेक्टरी बनाई, उसके अंदर क्या है, सी एस एस है, सी एस एस के अंदर क्या है, स्टाइल डॉट एस एस, इमेज डॉट और जे एस। ठीक है, अब लर्न बिल्ड के अंदर हम एसेट्स के नाम से क्या बनाएंगे, एक वो बना देंगे। ठीक है, किसके नाम से, एक और डायरेक्टरी बनाएंगे। ठीक है, एक और डायरेक्टरी बनाएंगे, mkdir एंड पेस्टेड। ओके, अब ये एक हमारी बन गई। अब उसके अंदर क्या है, सी एस एस है। ठीक है, सी एस एस है हमारे पास। अब सी एस एस के अंदर क्या होगा, स्टाइल डॉट सी एस एस होगा ना। अब इसके अंदर भी एक और क्या बना देते हैं हम, एक और डायरेक्टरी बनाते हैं। आपको जाना पड़ेगा सी डी एसेट्स के अंदर। ओके, और एम के डी आई आर स्पेस, और अपना हमारा सी एस एस। ओके, सी एस एस, ये बन गई सी डी सी एस एस। तो
CSS हमारी फाइल बन गई। इसके बाद में हमको क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना है किसका, अपना स्टाइल CSS का, ठीक है, स्टाइल CSS। तो ये हमारा हो गया स्टाइल CSS का फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर हमारा जो हमारा कोड है कि हमारा स्टाइल बॉडी के स्टाइल्स क्या रहने चाहिए वो सब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ओके। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस हो गया अपना। अब आता है हमारा अबाउट डॉट पी एच पी, ओके, अबाउट डॉट पी एच पी। अब अबाउट डॉट पी एच पी किस में था हमारा, ठीक है। ये बड़ी ध्यान से करनी होती है ना हमें, ये हमारा जो आर्किटेक्चर है ना, अबाउट डॉट पी एच पी किसके अंदर है, लर्न डॉट बिल्ड के अंदर है, ओके। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है, कि कैसे कैसे करना है। तो हमको अब क्या करना होगा, लर्न बिल्ड उसमें आना पड़ेगा वापस, ओके। तो हमें कितने डायरेक्टरी पीछे आना पड़ेगा, 2 डायरेक्टरी पीछे, ठीक है। लर्न बिल्ड आगे। अब हम क्या करेंगे, फिर विम करेंगे, और हमारा दूसरा जो है हमारा हेडर डॉट पी एच पी हो गया, इंडेक्स डॉट पी एच पी, फुटर सी एस एस हो गया, अबाउट डॉट पी एच पी ना, कि हमारे क्या क्या अबाउट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अबाउट डॉट पी एच पी, इसके अंदर हमारा कोड हो गया, ये। तो ये जो इतना भी कोड है, मैं कोई अपना लिखा हुआ कोड नहीं लिख रहा, मैं कोई डेवलपर नहीं हूँ, मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, ठीक है, और क्लाउड कंसल्टेंट, ठीक है। तो मैं ये काम करता हूँ, लेकिन फॉर नॉलेज पर्पस मैं ये चीज़ें बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी अगर चाहें तो ये चीज़ें अपने आप खुद से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये मैं किसी के हेल्प की नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को किसी की हेल्प चाहिए। अगर मेरे को कोई भी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी कोड से रिलेटेड, या मेरे को कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी, तो वो मैं खुद कर सकता हूँ ना। इफ़ यू अगर आपके पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कोड से रिलेटेड, तो आप उसमें कर सकते हैं। अब लाइक ऐसे ही कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी हो गया मेरा। तो जितने भी हमारे पास ये हैं, उन सब में हम अपने डिटेल्स डाल लेंगे। ऐसे ही ये एक स्टैंडर्ड वेबसाइट मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको जितना भी होगा आप देख पाएंगे, ठीक है। वीडियोस लास्ट तक देखा करो, जैसे कि कुछ आपको हेल्प हो सीखने में, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अभी मेरा ये सारा पार्ट हो गया है ना। तो मैं अगर इसको ls करके देखूंगा तो मेरे पास सारी फाइल्स बन गई हैं, ठीक है। ये मेरी सारी फाइल्स हैं, सर्विसेज डॉट पी एच पी लाइक ऑल, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि अब मेरे को और क्या चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दी, ठीक है। अब मेरे को करना है एक मेरे को बनाना है अपना, लाइक अगर मैं अपने आईपी के साथ सर्च करता हूँ ना, आईपी का मेरी पब्लिक आईपी ये है, ठीक है। मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, ये अभी इसलिए दिखा रहा हूँ कि सब चीज़ें मैं उस पर कर रहा हूँ, ठीक है। अ, अभी सिर्फ इसको हिट करता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मिल गया। अगर मैं इसको स्लैश पे कर रहा हूँ, अभी देखो ये ना एच टी टी पी पी एस पे आ रहा है, लाइक 443 पोर्ट पे आ रहा है, 443 पे ये ओपन भी नहीं होगा, ठीक है। स्लैश करता हूँ, ठीक है, ये मेरे को अपाचे 2 का पेज दे रहा है, लाइक मेरा वेब सर्वर काम कर रहा है, ठीक है। अगर मेरे को ये चीज़ मिल रही है तो मेरा वेब सर्वर काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको स्लैश लर्न बिल्ड डॉट इन करता हूँ, लर्न बिल्ड डॉट इन करता हूँ, तो मेरे को क्या मिल रहा है, ये नॉट फाउंड यूआरएल नॉट फाउंड ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। और एक सर्वर एट दिस पोर्ट 80 अपाचे, ओके। सो अगर मेरे को यहाँ से क्या करना है, अभी पहली बात मेरे को क्या करना होगा, ये HTML का पेज छुड़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, HTML का पेज उड़ाना, तो RM-RF, नहीं अभी ये मैं डायरेक्टली जाता हूँ, फिर यहाँ से करता हूँ RM-RF थोड़ा सा ध्यान से चलाया करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका सब कुछ क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लर्न बिल्ड हो गया। अब इस बार इसको करता हूँ लर्न बिल्ड, है ना, स्लैश लर्न बिल्ड। इसमें कुछ था क्या, अभी कुछ आता है, अभी ये नॉट सिक्योर आ रहा है, ठीक है, 404 ही आ रहा है कि इसको अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सिस्टम CTL एक बार हम अपना क्या करते हैं,
रिस्टार्ट कर लेते हैं, रिस्टार्ट अपाचे 2। ठीक है, ये रिस्टार्ट किया। अभी देखते हैं कि अभी क्या कुछ आ रहा है इसमें। हाँ, अभी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अब चलता है हमारा ट्रबल शूटिंग का पार्ट। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब सेकंड आते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर। ठीक है, कि भाई ये हमारा कोड जो भी है वो हमने सब कुछ डाल दिया है। अब क्या करना है, ठीक है, अब हम करेंगे ये वाला सारा पार्ट। ठीक है, पीएचपी हमने इंस्टॉल कर दिया, पीएचपी का वर्जन देख लिया, अपाचे प्लस पीएचपी का देख लिया, इको। ठीक है, एक क्या करते हैं हम, एफओ डॉट पीएचपी बना देते हैं सीट। ठीक है, एक, ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं कि अभी हमारा कुछ करता है कि नहीं चलता। एक एच टी एम एल का एक एच टी एम एल डायरेक्टरी बनाते हैं, कॉपी। ठीक हो, इसमें हम सीधा इसको कमांड चक को चला देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक सिंपल पीएचपी का वो मेरा उसमें डाल देगा। अब क्या करें, एच टी एम एल फाइल नहीं मिली इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एम के डी आई आर एच टी एम एल, ओके, एच टी एम एल एक हमने फोल्डर बनाया। अब अगेन दोबारा से वही कमांड चला देंगे, तो ये हमारी कमांड चल गई। ठीक है, अब क्या बोला इसने, अब बोला है इसने, अब इन्फो डॉट पी एच पी करना है। ठीक है, सर्वर आई पी स्लैश इन्फो डॉट पी एच पी, हाँ, इन्फो डॉट पी एच पी। ये क्या कर रहा है, लाइक मेरा पी एच पी का वर्जन दिखा दिया भाई इसने। ठीक है, पी एच पी का वर्जन 8.3 था, और यहाँ पर भी क्या हो गया, पी एच पी का 8.3 है। ओके, सो हियर वी कैन स्टार्ट। ओके, अब हम करते हैं, अब हम ये वाला, लाइक हमारा चल रहा है भाई, है ना। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, इन्फो डॉट पी एच पी को अपने यहाँ से। ठीक है, इन्फो डॉट पी एच पी वाला पेज हम रिमूव कर देते हैं। अब देखोगे आप, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, हाँ, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ ये भाग जाएगा, भाग गया ना। तो यही होता है। ठीक है, अभी मैं करता हूँ अपना नेक्स्ट स्टेप पे। अब करना है मेरे को ये, ठीक है, मेरे को ये पहले तो कॉपी करके कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि कनेक्ट करो। पहले तो मेरे को एक कॉन फाइल बनानी है ना, एक कॉन फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, मैं अपने कॉन फाइल का मतलब जहाँ पर हमारा सारा मटेरियल होता है ना। ठीक है, ये मैं नैनो टूल यूज कर रहा हूँ। नैनो की आप नैनो भी कर सकते हैं, विम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। मेरे को विम अच्छा लगता है, मैं विम को यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो। तो इसका मैं अभी एक बार क्या करता हूँ, इसकी कॉन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं इसकी कॉन फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, अब कॉन फाइल में क्या कह रहा है कि देखो मेरा सर्वर एडमिन का नाम ये कोई भी रोल सकता है। ठीक है, लर्नबिल डॉट इन मेरा डोमेन का नाम है, ये मेरा सर्वर एलियास हो गया, और मेरा जो डाटा है, मेरा कोड है, वो कहाँ पे पड़ा है, इस लोकेशन पे पड़ा है। ठीक है, मेरे जो लॉग्स हैं वो मेरे यहाँ पे बनेंगे, एरर लॉग कस्टम लॉग्स भी मेरे यहाँ पे बनेंगे। अगर मेरे को कोई और लॉग्स चाहिए तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरे को और क्या चाहिए। ठीक है, तो मेरा एक ये हो गया। सेकंड हम स्टेप करेंगे, अब मेरा क्या हो गया, वर्चुअल होस्ट बन गया। सेकंड मैं क्या करूँगा, मैं अपना ये, अब मैं अपनी जो मेरी कॉम फाइल है उसको क्या करूँगा, इनेबल कर दूँगा। ठीक है, ये ए टू इनसाइट की कमांड होती है अपाचे 2 में। ये क्या करता है, मेरी फाइल को कर देती है। ठीक है, क्या करती है, मतलब इनेबल कर देती है। अब देखो इसमें ना डिपेंडेंसी मांग रहा है कि हमको अपाचे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हमको सिस्टम सीटीएल, ये हमारा अपाचे रीस्टार्ट हो गया। सेकंड हम क्या करते हैं, रिलोड अपाचे 2 हो गया। अब अगर डिसेबल डिफ़ॉल्ट साइट, अब मेरे को क्या करना है, डिफ़ॉल्ट के जो मेरे कॉन फाइल थी उनको क्या करना है, डिसेबल करना है। कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल्स भी होती हैं इसके अंदर, कॉन फाइल्स, तो मैं उनको भी क्या करता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ, जाके मेरा उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ, देखिए, अब ये कह रहा है कि मेरा अब हो गया। ठीक है, अब मैं इनको दे देता हूँ परमिशन। ठीक है, कि मैं वॉर्ड आउट ऑफ की मैं परमिशन दे रहा हूँ भाई अपने फोल्डर को। ठीक है, तो ठीक है, वापस कर देता हूँ मैं इसको यहीं पे। ठीक है, मेरे को परमिशन देनी है। अगर प्रॉपर परमिशन भी नहीं होंगी तो वो मेरा नहीं चलेगा। अब मैंने ओनरशिप दी अपने इस फोल्डर को, इसको डब डब डाटा को, डब डब डाटा, ओके, कि इसके ग्रुप और सबकी परमिशन क्या है, डब डब डाटा। अब मैं इसको बता देता हूँ परमिशन, वो ओनरशिप थी, ये है परमिशन, कि लाइक कौन कौन से एग्जीक्यूशंस मेरे इस फाइल्स में किए जा सकते हैं। ठीक है, 755 की हमने परमिशन दे दी अपने इस फोल्डर को कि वो कर सके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब उसका इसको ये अलग पॉइंट है कि मेरे को एसएसएल लगाना है या नहीं लगाना। पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ चला के कि भाई मेरे लर्नबुल डॉट इन चल रही है क्या नहीं चल रही। ठीक है, पहले आईपी पे देख लेता हूँ, आईपी पे कुछ चल रहा है क्या। ठीक है, आईपी पे अगर
हाँ, तो आईपी पे अगर देखता हूँ तो मैं यहाँ पर आ, अभी पोर्ट 80 पे ही चलेगा। तो मेरा क्या आता है, देखो मेरा पोर्ट ओपन आ गया। ठीक है, वेलकम टू learnbill.in, इसमें मेरा एक होम पेज आया। ठीक है, ये मेरा होम पेज है। ये मेरी सर्विसेज का कुछ आया कि हम सर्विसेज क्या देते हैं, क्लाउड माइग्रेशन, क्लाउड डेवऑप्स कंसल्टिंग, मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन। ठीक है, अबाउट अस का में आ गया, फाउंडेड बाय सुनील तंवर, लर्नबिल डेडिकेटेड टू प्रोवाइडेड टॉप नॉच डेवऑप्स एंड क्लाउड सॉल्यूशन टू बिजनेस टू ऑल। ओके, एंड दिस वन, ये मेरा फ़ोन नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, ये कॉन्टैक्ट्स जो है मैं ये चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स में मेरे मेरे पास ये डिटेल्स आ गई, फॉर इंक्वायरी प्लीज रीच आउट टू अस सुनील तंवर। ये मेरा नंबर हो गया, ये ईमेल एड्रेस हो गया। ईमेल एड्रेस को मैं जाके चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी जो मेरा पर्सनल ईमेल एड्रेस होगा मैं उस पर वहाँ पे डाल सकता हूँ। ये लोगो है, लोगो को हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मेरा अगर मैंने कंपनी का लोगो डाल दिया है तो वो चलेगा। अगर मैं इसको, मैं क्या करता हूँ, लर्न बिल्ड डॉट इन से चला के देखता हूँ कि मेरा चल रहा है। ये तो लेंडर पेज आ रहा है ना। अभी ये इस क्यों आ रहा है, देखो ये आ रहा है मेरा इसलिए कि मैंने अभी तक जो अपना डोमेन है उसके साथ में इसको वो नहीं किया है, मैप नहीं किया है ना, आईपी को मैप नहीं किया। एच टी पी इस पे चला के देखता हूँ तो ये भी ऐसे ही करेगा। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा मेरे को, अपना जो आईपी है वो मेरा को गोडेडी पे जाके इसके साथ ए रिकॉर्ड इसके सेट करने पड़ेंगे। फिर मेरे को एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन वो मेरा चल जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैं आईपी से इसको सेट कर चेक कर पा रहा हूँ। ठीक है, इन्फो डॉट पी एच पी जैसे मेरा ये हो गया, ये सारे मेरे को दिखा रहा है ना, कॉन्टैक्ट डॉट पी एच पी, ये इंडेक्स डॉट पी एच पी होम हो गया, सर्विसेज हो गई। ठीक है, अबाउट अस हो गया। ठीक है, कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है, अभी इसमें अगर मैं चाहूँ तो कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ, लाइक मैं इनमें कलर्स भर सकता हूँ अगर और भरने हैं तो। आप भी अगर चाहें तो अपनी खुद की वेबसाइट फ्री में क्रिएट कर सकते हैं और उसको होस्ट करा सकते हैं फ्री में ही। ठीक है, तो ये एक वीडियो है। ठीक है, अगर आप किसी को कुछ भी और कोई जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर इस वीडियो में दिख रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर काम भी कर चुका करता हूँ और एज अ फ्रीलांस भी काम करता हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को अपनी कोई वेबसाइट होस्ट करानी है, कैसे भी किसी को कोई भी सॉल्यूशंस चाहिए क्लाउड से रिलेटेड, डेवऑप्स से रिलेटेड, तो यू कैन कांटेक्ट विद मी ना। ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, ये अगर आपको चाहिए तो ये 7015477035। ओके, एंड मेरा ईमेल एड्रेस भी है suniltawar65@gmail.com। ओके, सो अगर आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक इसको शेयर करें जिन जो लोग अभी स्टार्टिंग फेज में है कि EC2 कैसे क्रिएट करते हैं ऐसा। तो अगर एनी वीडियोस आपको चाहिए किसी भी हेल्प से रिलेटेड, सो आई कैन मेक इट and upload it to my channel and you can watch it, okay, and learn it from it. Okay, so thank you. I hope the video, you will like the video. Okay, so thank you so much for watching.